I was, a very shy, introverted kind of personality during my school time. That I was not knowing that industrial training is a thing, as Oh, part of, yeah. can you explain our viewers what exactly your role in BPCL is and what do you mean by when you say that treasury and retirement benefits? तो exactly आपका daily task क्या Completely होते the हैं? opposite. ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ आपको बस कैश फ्लो देखना है या बस ऐसा या फिर ये जो prior knowledge of stock markets and all, is it expected from a candidate who is applying? पैसा कब कहाँ किस में डालना है ये अगर पूछना है तो अभिषेक पुराणिक से कांटेक्ट करना in the interview आपको क्या क्या questions पूछे थे and if any candidate is having interview in such domain how he should prepare for the same. या सो वो अभी इंटरव्यू में क्या क्वेश्चंस पूछेंगे, दिस डिपेंड्स ऑन Hello, viewers, and welcome to another episode of Decoding CA Industrial Training with CA Genie. And you're watching CA Genie Live on your YouTube channel of CA Genie. I'm CA Srishti Dilipsa, who the co-founder of CA Genie. And here we are here with the series of podcasts जहां हम burst करेंगे काफी सारे myths relating to CA Industrial Training and also share करेंगे हमारे speakers के real life experience and will help you land the perfect organization for your industrial training through our CA Genie app. तो जिन्होंने डाउनलोड नहीं किया है अब तक जाके डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से. Today we have with us Abhishek Puranik. He works as an industrial training into BPCL. तो आगे बढ़ने से पहले अभिषेक, why don't you give our viewers an introduction about yourself? Like कहाँ से हो? How did you do your articleship and from where? And how was your CA journey up till now? Yeah, so first of all, hi everyone, and I'm very excited to be here today, and always grateful to Srishti and the CE Genie platform for giving me this opportunity. Also, talking about my introduction, my name is Abhishek Puranik. I come from my hometown is Jalgaon. It is in Maharashtra, district place in Maharashtra. So and after that, I have pursued my articleship from a mid-sized firm, PG Bhagwat LLP, and then thereafter, I am currently pursuing my industrial training from BPCL. I am working in Treasury, the retirement benefits department. Also, apart from this, I have a passion for public speaking and writing, and so you can also find me quite active in ICI events, debates, elocution, the paper presentations, and also I love to write. I have contributed in in ICI newsletters. I also sometimes write on LinkedIn. So yeah, that's all about me. That's nice. Even when I was glancing through your LinkedIn profile, I saw you have written public speaking, like in Yeah. almost all of the places of your LinkedIn post and all. So, can you tell me how is this in all as an experience, and will you suggest students to be the part of all these events and competition? Because I myself have been a part of many of it, and I have been benefited a lot. So, what is your Yeah. take on it? Yeah, definitely, definitely. I would suggest each and everyone watching here right now to definitely be a part of these events. At least if you can't participate, just go and watch. If you are very fearful, eventually you will get on the stage and eventually you will get there. But just just start the process. I think because it has immensely helped me to this date itself that I was, a very shy, introverted kind of personality during my school time, always sitting on the corner of a class, just being, sincere and all. But then later, after my OC batch, after my inter OC batch, I attended, and there I got to know, I daily took that courage and, just stepped forward. I was glad actually that I got a very good faculties in my OC who explained me this importance, and somewhere it clicked. And then actually I was noticing the changes in my personality that it brought. It gave me that confidence of public speaking, and in that confidence I think it has grown over the period of time, and it has helped me in my every walk of life. That everything I do today, that confidence, that courage is there. So it is not just that participating in these events will only help you on your CV or something like that. It will grow you as a person. It will grow your personality. You will get that confidence in everything that you do, in every work that you do, in every studies also. So you get that mindset, you get that clarity which you can use in in different walks of your life.
So I Correct. think that is the single most benefit, and that is why everyone should participate, and everyone should ensure that you are taking part in any ISA event. First, you just go out and watch. Just take help from people. They Hmm. can contact people like you and me. We are always there to guide the students. So Exactly. definitely, yeah, definitely, it has been a most impactful thing, I think. करेक्ट एंड अपार्ट फ्रॉम कॉन्फिडेंस बिल्डिंग और जो पर्सनालिटी इवॉल्व होती है उसके अलावा जो Yeah, नेटवर्क यू गाइस कैन मेक देयर yeah, एंड ऑल दोस definitely. इवेंट्स आर डेफिनेटली अ की विच कैन आल्सो हेल्प यू इन लैंड Yeah. योर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एज Definitely, वेल definitely. या If you just know that I was not knowing that industrial training is a thing, as ओह part of, yeah, means many times we go to these events, then we get to know the different individuals, we network करेक्ट with people. Yeah, so there we got get to know because everyone comes with a knowledge base and everyone has different interest areas also. So there I got to meet, yeah, he is also pursuing some industrial training. So ऐसा करके भी कुछ होता है, देन अलग अलग डोमेन्स में होता है, फिर कैसे अप्लाई हाँ करना, या सो देयर इट गॉट एम्पलीफाइड एंड कंपाउंडेड. सो इवेंचुअली डेफिनेटली दैट इज एन एडेड बेनिफिट ऑफ ऑल दीज इवेंट्स. correct, correct. So now coming to the main part, can you explain our viewers what exactly your role in BPCL is and what do you mean by when you say that treasury and retirement benefits? तो exactly आपका daily task क्या होते हैं and या practically क्या काम करना पड़ेगा अगर कोई हमारा student join करता है into that particular domain? या सो ट्रेजरी का नाम सुनते ही आई डोंट नो कि ऐसा ऐसा लगता है कि क्या रोल होगा, एकदम ऐसा टिपिकल Yes. जैसे अनइंटरेस्टेड काइंड ऑफ थिंग होता है. बट लेट मी टेल यू, इट इज कम्प्लीटली द अपोजिट. ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ आपको बस कैश फ्लो देखना है या बस ऐसा बोरिंग मोनोटोनस काम है. डेफिनेटली ऐसा नहीं है. सो यहाँ पे मैं ट्रेजरी में स्पेसिफिकली रिटायरमेंट बेनिफिट्स में काम करता हूँ. सो Okay. इसमें कैसा होता है कि अपने को पता ही होगा, अपन ने पढ़ा है कि जो भी प्रोविडेंट हर एक कंपनी का प्रोविडेंट फंड होता है, ग्रेचुइटी होता है, सुपर एनिमेशन फंड एंड ऑल. सो इसका आपके पास मतलब बीपीसीएल में ये पूरा मैनेजमेंट हमारे टीम के पास होता है इसका. सो वी ऑल नो दैट एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन एंड एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन, there is one way that for PF you can either collect it and submit it to the government, Correct. and then otherwise you can make that separate fund of your company, and then you can manage that fund. So Yeah. BPCL exercises this second option, that it collects the employer contribution as well as the employee contribution, and then it manages it on its own and gives the return, which should be at par or above the return which is given by the EPFO Oh. or the fund. Otherwise that would only be beneficial, right? Otherwise why would a company establish the fund? What was its Exactly. purpose be? Yeah. Yeah. So BPCL does this and I am into that department. So यहाँ पे ऐसा होता है कि जो भी ये पैसा होता है एम्प्लॉय का, एम्प्लॉयर का, so we manage that money. We invest it into various kinds of securities, for example in government securities, in state government, state guaranteed loans, then G6 we call it, government securities, then bonds हो गए, corporate bonds, then mutual funds हो गए, ETFs हो गए. So यहाँ पे उस सब का एनालिसिस होता है, इक्विटी में कब डालना है, उसके बाद एनालिसिस करना है इन्वेस्टमेंट्स का, अभी सही टाइम है क्या डालने के लिए मार्केट में पैसा. उसके बाद सो यू गेट टू लर्न नाउ हाउ द थिंकिंग ऑफ द मैनेजर्स हियर इज, एंड बिकॉज दे आर ऑल्सो सीए देन सीएफए होल्डर्स, then you get to analyze कि market कैसा study करना है and how the thinking everything goes on, because we have to do it as per the regulations. We can't just randomly select any bond or like that, because there are certain guidelines also, EPFO guidelines and also other trust guidelines, whereby you have to invest in those particular security and certain percentage only you can invest out of all the investable surplus which you have for all the year. So ऐसा होता है कि आप
ऐसा किसी में भी नहीं डाल सकते, बट स्टिल आप ये एनालाइज कर पाते हो कि एक कैसे पूरे कंपनी लेवल पे, ऑल इंडिया लेवल पे हम मैनेज करते हैं यहाँ पे। मैनेज करते सो हैं। ऑल इंडिया लेवल पे कैसे मैनेज होता है, उसके बाद हाउ माई मैनेजर ऑल्सो इंश्योर्स दैट उतना अपने पास सरप्लस पड़ा है, उसके बाद यहाँ पे डालना है, कौन सी सिक्योरिटी अच्छी है, कौन सा बॉन्ड अच्छा है, वो क्राइटेरिया में बैठ रहा है कि नहीं, हाउ टू एनालाइज ईच सिक्योरिटी, ईच बॉन्ड, एंड यील्ड बराबर दे रहा है कि नहीं वो. So yeah, it is quite an interesting role. So definitely a lot to learn ओके। from that. Yeah. तो अभी जैसे इससे मुझे समझ में आ रहा है, तो क्या आपको प्रायर इंटरेस्ट था मार्केट, सिक्योरिटीज इन सब में, या फिर ये जो प्रायर नॉलेज ऑफ स्टॉक मार्केट्स एंड ऑल, इज इट एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ कैंडिडेट हु इज अप्लाइंग? नो, आई वुड से नो. मतलब मेरे को भी इतना नॉलेज नहीं था. ऑफ कोर्स थोड़ा बेसिक था, मेरा म्यूचुअल फंड्स ईटीएफ्स में मेरे इन्वेस्टमेंट्स थे, तो मैं बेसिक जो चेक करता था, मतलब बेसिक नॉलेज था. और ये पर्टिकुलर डोमेन के लिए भी ऐसा मार्केट्स का नॉलेज होना इज नॉट नेसेसरी, बट इफ यू हैव, दैट इज एन एडेड एडवांटेज. एडेड एडवांटेज, या डेफिनेटली. सो मेरे को भी इतना फाइनेंस में इंटरेस्ट नहीं था, बट आफ्टर आई हैव ज्वाइंड, आफ्टर आई हैव सीन द वर्किंग, आफ्टर आई हैव स्पेंड हियर 7 to 8 months नाउ, सो मेरा भी अभी इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, एंड आई एम गेटिंग इंटरेस्टेड इनटू मार्केट्स नाउ. सो डेफिनेटली भी बहुत इसलिए ये आई थॉट इट इज अ वेरी नाइस अपॉर्चुनिटी एंड अ नाइस इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ रोल. सो या करेक्ट। तो अभी मतलब पैसा कब, कहाँ, किस में डालना है, ये अगर पूछना है तो अभिषेक पुराणिक से कांटेक्ट करना ओके। yeah. यस, तो आपको लाइक व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस डू दे आस्क इन दी इंटरव्यू? आपको क्या क्या क्वेश्चंस पूछे थे, एंड इफ एनी कैंडिडेट इज हैविंग इंटरव्यू इन सच डोमेन, हाउ ही शुड प्रिपेयर फॉर द सेम? या सो अगर ये डोमेन के, अगर सो बीपीसीएल में बहुत डोमेन्स है, तो वो अभी इंटरव्यू में क्या क्वेश्चंस पूछेंगे, दिस डिपेंड्स ऑन डोमेन स्पेसिफिक. जो भी है आपका, या सब्जेक्टिव एज पर मैनेजर्स, उसका नीड कैसा है ना, एक्सेल, एसएपी, क्या वर्क इन्वॉल्व है. बट मैं मेरी स्पेसिफिकली बात करूँ तो इट वाज रिगार्डिंग, जैसे ये थोड़ा मार्केट्स के साइड में है, उसके बाद थोड़ा इन्वेस्टमेंट एनालिसिस है. सो यहाँ पे उन्होंने थोड़ा मेरे को पूछा कि XIRR, CAGR, IRR, इनका पर्पस क्या होता है, इन्वेस्टमेंट का क्या होता है. उसके बाद उन्होंने मेरे को थोड़ा केस स्टडी पूछा कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बॉन्ड्स है, उनके सिक्योरिटीज है, और कॉर्पोरेट के बॉन्ड्स है, तो इनमें क्या डिफरेंस होता है, आप कौन सा सिलेक्ट करोगे. एक केस स्टडी दे दिया था, उसके ऊपर डिसीजन मेकिंग, बेसिकली दे वर टेस्टिंग द डिसीजन मेकिंग एनालिसिस, एनालिटिक माइंड, या तो आप कैसे सिलेक्ट करोगे. सो या उसके बाद उन्होंने कॉन्फिडेंस भी देखा कि एक्चुअली ये एंड क्रॉस चेकिंग द आंसर्स, ऐसा थोड़ा कंफ्यूजन में डालना एंड ऑल. सो डेफिनेटली ये सब टेस्ट किया. देन मोस्टली तो मतलब क्रक्स उसका यही था, जो मैंने बोला आपको. एंड अदर देन दैट द बिहेवियरल क्वेश्चंस, उसके बाद HR क्वेश्चंस, वो तो थे ही, बट या मेन क्रक्स. तो कैंडिडेट को बीपीसीएल में इन्हें पहले से पता होता है कि आपका कौन से रोल के लिए इंटरव्यू होने वाला है, या ऑन द डे ऑफ इंटरव्यू पता चलता है? नहीं, वो पता होता है कि कौन से रोल के लिए होता है, या कौन लेने वाला है, या मैनेजर. करेक्ट. सो दैट दे कैन प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू द रोल एंड द जॉब डिस्क्रिप्शन, एवरीथिंग. सो अगर आपको कुछ बेसिक फाइनेंस टॉपिक सजेस्ट करने होंगे इन केस एनी कैंडिडेट इज हैविंग इंटरव्यू इन बीपीसीएल, तो आप क्या सजेस्ट करोगे उसको पढ़ के जाने? सो अगर AFM आपने पढ़ा है, ऑलरेडी चालू कर दिया है, सो यू कैन ऑफ कोर्स डेरिवेटिव्स का थोड़ा पढ़ सकते हो, थोड़ा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. उसके बाद जैसे मैंने बोला अभी, XIRR क्या होता है, उसके बाद CAGR, IRR, इनमें का डिफरेंस, कब क्यों कैलकुलेट होता है, पर्पस क्या है. उसके बाद यील्ड कैसे कैलकुलेट होती है हर बॉन्ड की. और जैसे मैंने बोला अभी, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, आप कौन सा सिलेक्ट करोगे बेस्ड ऑन द करंट मार्केट सिनेरियो. उसके बाद और आपके बेसिकली आपके CV में जो भी लिखा हुआ है, be thorough with that, don't bluff anything. And what I would say is just be honest with your answers. आपका ऑनेस्टी ज्यादा रिफ्लेक्ट होगा आई थिंक, और वो ज्यादा आपका थोड़ा कैरेक्टर बताता है कि, है ना, कि आपने, और वो समझ आ जाता है कि आप जैसे आंसर्स कर रहे हो, एंड द वे यू आर टॉकिंग एंड स्पीकिंग विथ योर आंसर्स. सो वो समझ आता है कि ये सिर्फ ब्लफ, इसमें सिर्फ CV में डाल के रखा है, या ये एक्चुअली नोज किया भी है कुछ. या सो वही मैं बोलूंगा, ये सब
आई थिंक जो सीवी में डाला है, अगर आप फाइनेंस का कुछ डाल रहे हो, आपने कुछ फाइनेंशियल मॉडल पे काम किया है, तो यहाँ पे सब सीएफए बैठे हैं, इन्होंने और सब करके रखा है, तो दे नो वो आपको कुछ दे देंगे लाइव टेस्ट उसके बाद, या फिर और कुछ पूछ लेंगे। सो आपको अगर डालना है तो आप वैसे डालो, ब्लफ मत करो, और अगर डाल रहे हो तो सो सो बी रेडी, बी थरो विथ योर सीवी, एंड बस यही। या Yeah, well enough. So, आपने how did you approach to the different organizations while you were applying for industrial training and how did you apply? यानी वो पूरा process कैसा रहा आपका? या या सो मैंने ये एप्लीकेशन प्रोसेस आई थिंक 2 months बिफोर माय 1 year वाज गेटिंग कंप्लीटेड, मैंने स्टार्ट किया। एंड डेफिनेटली मैंने अलग अलग प्लेटफॉर्म्स यूज किए उसमें, ऑफ कोर्स सीएजीनी तो था ही, या व्हाट्सएप वैकेंसीज आती थी आपकी, तब तक आई थिंक थोड़ा ऐप में इतना मेन स्ट्रीम नहीं हुआ था, Yes, और इतना app नहीं तब तक था डेवलप तब नहीं तक सिर्फ हुआ। WhatsApp या yeah. डेफिनेटली डेफिनेटली। सो व्हाट्सएप में बहुत हेल्प किया, मतलब मैं वरुण से भी थोड़ा कांटेक्ट में था, मैंने वो लिंक्डइन पे भी डाला था, मतलब मैं पढ़ता था, आप लिंक्डइन पे भी डालते थे, व्हाट्सएप पे भी डालते थे, हाँ. सो या आप भी, और सो डेफिनेटली दैट वाज, मतलब वो उसने भी बहुत काफी हेल्प किया। देन अदर प्लेटफॉर्म्स भी थे, जैसे लिंक्डइन था, माय स्टूडेंट क्लब था, तो यहाँ पे Correct. सब वैकेंसीज कोलेट होती है, तो डेफिनेटली लोकेशन वाइज और ये सब उन्होंने बहुत हेल्प किया मेरे को। उसके बाद वो बस बेसिक था कि लिंक्डइन पे एक्टिव रहना है, उसके बाद सीवी हमेशा, है ना, अपने को नए नए पॉइंटर्स पता चलते हैं, क्योंकि अपन नए रहते हैं, अपने को पता नहीं रहता है। सो हमेशा आपको जैसे इम्प्रूवमेंट फीडबैक मिला तो आप सीवी अपडेट करो, थोड़ा क्वांटिफाई करो, थोड़ा बोल्ड लेटर्स करो, जो भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है। और या बेसिकली वही चालू किया धीरे धीरे, जैसे जैसे फीडबैक मिलता गया इंटरव्यू में भी, वैसे वैसे खुद को डेवलप किया, इम्प्रूव किया। एंड वही मैं बताऊंगा कि दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग विच आई रियलाइज, कि खुद को बस बेटर करते जाना है, क्योंकि कोई भी आई थिंक बेटर नहीं होता है, मतलब सब ऐसा जीरो से स्टार्ट करते हैं, सो यू लर्न ईच डे या आफ्टर। और कोई भी ऐसा इंटरव्यू को ऐसा निगलेक्ट मत करो कि मैं तो सिर्फ फाइनेंस के ही दूंगा, मैं तो सिर्फ प्राइवेट इक्विटी एंड गोल्डमैन सैक्स एंड यही सब इंटरव्यूज दूंगा, ऐसा नहीं है। एवरी सिंपल स्मॉल बेसिक रोल का भी आप इंटरव्यू दो, आपका वो एक्सपीरियंस बनेगा, आप इट वुड मेक यू अ बेटर कैंडिडेट फॉर द और फ्यूचर कॉन्फिडेंस इंटरव्यूज। आएगा, एक्सपीरियंस आएगा डेफिनेटली इंटरव्यूज का। करेक्ट. डेफिनेटली आप और फीडबैक पूछो इंटरव्यू के बाद, हमेशा एंडिंग क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन ये भी होना चाहिए कि फीडबैक क्या है इंटरव्यूज का। उससे मेरे को और समझा कि मैं टेक्निकल एरियाज में यहाँ पे वीक था, इंडेस यहाँ पे पूछ रहे थे। सो डेफिनेटली वो उस पे सीरियसली काम करो, कि वो आपको बहुत आई थिंक बेटर बनाएगा। करेक्ट, लाइक कि रिजेक्शन हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि बस सैड से बैठे रहो। व्हाट पॉइंट्स वेयर डिड वी लैक, ये सब आइडेंटिफाई करके देन यू हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ टू मूव फॉरवर्ड। या कि आप मतलब उठो ही मत, अभी जैसे आप कोई इंटरव्यू दे रहे हो पर आपको फीडबैक मिला तो आप नोट कर लो, और तभी इंटरव्यू के बाद मतलब तुरंत उसके ऊपर काम करो, और फिर ही आप उसको नोट डाउन करके फिर यू गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट वन। सो डेफिनेटली ऑल, और सीवी भी आपका एकदम मतलब एकदम प्रॉपर स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में होना चाहिए, जैसे मैंने बोला क्वांटिफाई, और जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है वो बोल्ड रखने चाहिए, उसके बाद जो काम किया है वो डालो, उसके बाद ज्यादा कुछ ब्लफ मत करो, या जस्ट बी थरो विथ योर सीवी। आपने एक एक चीज जो काम की है, एक्स्ट्रा करिकुलर्स में भी कुछ है अगर, तो वो सब स्पेसिफिक आपके पास रेडी होना चाहिए, क्योंकि एनीथिंग कैन बी आस्क्ड या फ्रॉम द सीवी डेफिनेटली। सो अभी तक लाइक हम पहले आर्टिकलशिप में थे, अब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, सो इट्स टोटली अ बिग ट्रांजिशन। तो आपको कैसा लगता है, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस टिल नाउ इन बीपीसीएल एंड हाउ इट इज डिफरेंस फ्रॉम द आर्टिकलशिप फर्म? सो आई थिंक इट इज ऑल टुगेदर कम्प्लीटली डिफरेंट। जैसे मतलब आर्टिकलशिप में अपने को ऐसा थोड़ा होता है कि जैसे डेडलाइंस का बहुत काम होता है, जैसे मेरा स्टैट्यूटरी ऑडिट, टैक्स ऑडिट इसमें था डोमिनेंटली। सो मेरा मतलब वही था अपने को, और हर एक स्टूडेंट ऐसे भी रिलेट करता होगा कि है ना, अपने को अपन ऐसा थोड़ा जनरलाइज कर देते हैं कि अपन थोड़ा ऐसा फ्यूचर पिक्चर बना लेते हैं कि अभी तो यार अपने को यही करना है, अभी यही होगा, क्योंकि है ना ऑडिट टैक्स में ऐसा है, ऐसा काम होता है। बट जब मैं यहाँ पे आया तो मतलब मेरे को समझा कि नहीं, ऐसा नहीं है, थोड़ा थोड़ा सा वर्क लाइफ बैलेंस भी हो सकता है और इंडस्ट्री में हो सकता है वैसा थोड़ा चिल हो सकता है।
और मतलब यहाँ पे द पीपल आर काइंड ऑफ कंसिडरेट ऑफ द, बिकॉज दे ऑल्सो नो, they also the people here are also working there are CAs, so they Yes. also give you time, they also guide you. या मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आर्टिकलशिप में गाइड नहीं करते या Hmm. मैनेजर से, बट यू नो द थिंग इज उनका भी इफ यू पुट देम, मतलब आप उनके पोजीशन पे अगर जाओगे तो यू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि उन पे भी डेडलाइंस होती है, करेक्ट, तो वो उनपे भी प्रेशर आता प्रेशर है होता ऊपर है, से। हाँ। करेक्ट, वो प्रेशर कैरी ऑन फ्यूचर भी आप थोड़ा डिसाइड कर सकते हो कि आप और कहाँ कहाँ पे जा सकते हो, बाकी टीम में कनेक्शंस बनते हैं, नेटवर्किंग बनता है। But Exactly. definitely all this can definitely help you, you know, in future for any job opportunity or for anything for that matter. Correct, correct. Even I Yeah, did the same while I was doing my yeah, industrial training in UBS. Like I connected with my friends जो लोग दूसरे टीम्स में काम कर रहे थे, उनसे जाना yeah, व्हाट्स योर वर्क, क्योंकि हर डिपार्टमेंट का काम अलग होता है। देन यू गेट अ ब्रीफ definitely. पिक्चर की क्वालिफाई करने Yeah, के बाद आप किस डिपार्टमेंट्स में जा सकते हो और क्या एक्सप्लोर कर सकते हो। तो या, yeah, नेटवर्किंग ऑलवेज हेल्प्स इन एनी केस। definitely, Definitely. definitely. Yeah, Okay. yeah, So, for the viewers, those who don't know about CA Genie app yet, you can go and download CA Genie app from the Play Store, जहाँ काफी सारे filters है. You can filter all the vacancies location wise, domain wise, articleship हो, industrial training हो, semi qualified हो या even qualified CA. We have all the vacancies posted there daily. So just go and download and check out our app. Okay, Abhishek. So let's move on to another small fun segment that we keep in almost many of our podcast. एक थोड़ा fun element create करने के लिए. So I'll ask you yeah, 3 rapid fire question. The first yeah. would be, if your colleagues were to describe you within 3 words, so what words will they use? Okay, that's quite a tricky one. But I would say, you know, funny, and then helpful, or and the one who roasts other a lot. Uh-huh. So yeah, I'm Nice, a nice. roaster. Yeah. Nice. Don't roast me in this podcast. No, maybe Okay, after our podcast. Yeah. sure. Okay, the Yeah. another one. Which Excel shortcut you use the most? Currently here, usually, and we have to send this whatever work Excel file we make to our managers as soon as Hmm. possible. So I have created that you know, customized quick access toolbar, and I'm Hmm. using Alt 2 now, Alt and Okay. Numlock 2, because I Macros, you have mean? created customized it. Yeah, Ah, yeah, yeah, nice. definitely. So that is the one I'm using. Nice. Okay. So, if your industrial training journey was a movie, what title it would have? Uh, okay. I think it would be a pursuit of happiness, the pursuit of Oh, happiness. Yeah, nice. yeah, because I think the same emotions, you know, roller coaster journey, where Ah, suddenly you feel like you are not getting any calls or any replies. And then one fine day you get the opportunity, so correct. you convert it. Yeah, so yeah. Okay, nice. So, okay, lastly, last two questions. Like, what other skills do you feel are important for cracking an interview into any organization? Yeah. So one thing is definitely, this is not a typical cliche kind of advice. So Hmm. one is definitely, you know, the confidence Hmm. and the never say die attitude. Definitely. So no matter how many times you get rejected or you get negative feedbacks, just don't be harsh on yourself. Just keep on improving yourself. That's it. Just don't take it too personally. And definitely, I think just keep on improving yourself. Your communication, if communication is the feedback, if Hmm. technical points are the feedback, just analyze those points and just keep on improving. And instead of asking, you know, why is this happening with me? मेरे तो ग्रह ही अच्छे नहीं चल रहे, stars ही सब खराब है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा. Just analyze what this is trying to teach you, and बस खुद को improve करो, बस ऑटोमेटिक सब ठीक हो जाएगा. और फिर आप Correct. भी पॉडकास्ट पे आ जाओगे, ऐसा कुछ तो और बढ़िया हो Yes, जाएगा. yes. Okay. So, lastly, if any advice or any do's and don'ts from your experience that you want to share to all the viewers who are aspiring to go for industrial training. डूज तो मैंने अभी जैसे बता ही दिया कि Hmm. यू नो जस्ट कॉन्फिडेंस रखना है और नेवर स्टॉप अप्लाइंग. मतलब ऐसा आप हमेशा अप्लाई करते ही रहो, और नो मैटर कोई भी वैकेंसी आए, कोई भी लोकेशन के लिए आए,
pan India भी. So just increase your that will increase your chances of selection. आप अगर relocation के लिए भी if possible आप ready हो सके तो उसके बाद so और don'ts मैं बोलूंगा कि है ना कि क्या बोलते हैं मतलब हमेशा खुद को अपडेटेड रखना. ऐसा कभी मत समझना कि मैं तो यही लोकेशन का हूँ या मेरा आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस सिर्फ यही स्पेसिफिक डोमेन में है तो मेरे को मिल नहीं सकता. सो डेफिनेटली आई थिंक वो नहीं करना है और कभी भी ऐसे खुद को डीमोटिवेट नहीं रखना है. हमेशा खुद को इम्प्रूव करते जाओ. सीवी में डे टू डे अपडेट करते जाओ. आपको जो भी नई चीज समझती है या अब जैसे सीएजीनी का भी प्लेटफॉर्म है, आप गाइडेंस सेशंस भी लेते हो तो Yes. वो अटेंड करो. और आप लिंक्डइन पे भी डालते हो अबाउट द यूजफुल टिप्स विच हेल्प यू, या जो भी डालता है. सो डेफिनेटली ये सबका एक समरी बनाओ या जो भी आपको जैसे हेल्प हो, एक ट्रैकर बनाओ आप खुद का ऐसा अलग से स्प्रेडशीट. और जो भी है आप मतलब कंस्ट्रक्टिवली आप सीरियसली अपने ऊपर काम करो. डेफिनेटली आई थिंक ऑल दीज थिंग्स विल हेल्प यू. Correct, correct. Yeah, so it was a very in-depth, holistic podcast with you, Abhishek. I hope our viewers also find this useful. Thank you so much for coming here with CA Genie and sharing all your experiences on all the tips and tricks to our viewers and the students watching out this video. So thank you so much for joining here, us. Yeah, thank you very much. And also I'm anytime also ready. And also I think Srishti and me anytime we are available to solve your queries. You can message us anytime on LinkedIn. Definitely we are very happy. We will be very happy to solve your queries or anything that is your issue. Yeah, thank you very much, Srishti, for calling me and giving me this opportunity. Most welcome and thank you for coming. And thank you everyone for watching our video till the end. If you like the video, please subscribe and share, and also comment on the video if you like it, and also help us know what more things can we do and give us the genuine feedback. Thank you. Thank you everyone.